یہ وہابی نبی کا نہیں سنیوں، رافضی بھی نبی کا نہیں سنیوں، خارجی بھی نبی کا نہیں سنیوں۔ ارے سلگا کل نبی کا نہیں سنیوں، سلگا کل نبی کا نہیں سنیوں۔ ارے سنی مسلم کے سچا نبی کے لیے کون؟ ہلو، ہاں کیا دوبارہ بتاؤ؟ میرا نام ہے رضا میاں قادری برکاتی۔ جی اب بتلائیے کیا کہنا ہے؟ جی کہنا یہ ہے، یہ میرے پاس ہے۔ آپ عالم ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اچھا ٹھیک ہے، ماشاء اللہ زبردست۔ اب بتلائیے۔ جی 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 اور ابھی آپ کے بھائی سے جو بات ہوئی تھی نا آپ سے پہلے، جی ان کی بات کا میں کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ وہ عالم نہیں ہے، اس لیے میں نے ان سے جواب ان کو دیا یا نہیں دیا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ گفتگو اب آپ سے چلے گی، ٹھیک ہے؟ ٹھیک 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 ٹھیک۔ تو ٹھیک ہے، جناب ہاں۔ آپ کیونکہ ان کی نام، آدھی بات تو میرے سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد ریحان۔ اچھا اچھا، ماشاء اللہ۔ اور آپ عالم ہیں؟ اصطلاحی معنی کے لحاظ سے عالم نہیں ہوں، البتہ یہ ہے کہ میں ابھی جو 8-9 سالیں ہوتی ہیں وہ میں نے مکمل کر لی ہیں۔ اچھا چلو ماشاء اللہ۔ تو جی انشاءاللہ آپ بات کرنے کے لیے تیار ہیں حضرت؟ بالکل، الحمدللہ۔ اچھا اچھا اچھا۔ تو ہمارا موضوع یہ ہے، جی ہلو، جی ہمارا موضوع یہ ہے کہ دیوبند کے جو بڑے اکابر ہیں یہ کافر ہیں حضرت۔ اچھا۔ جی ہم ان کا کفر ثابت کریں گے آپ کے سامنے۔ اچھا جی جی اچھا، ایک بات بتاؤ، جی اگر بات حق نکلی تو مانو گے؟ ہاں بالکل مانا جائے گا کفر، اگر آپ ان کو مسلمان ثابت کر دیں تو مانا جائے گا۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ ہاں یقین مت دیجیے بھائی میرے فون۔ میں نے کافر ثابت کر دیا تو دیکھو آپ بھائی ایک بات مسلک پہلے سن لیں۔ یعنی مسلک اعلی حضرت کو قبول ہاں کریں گے؟ ہاں، اگر میں نے ان کو کافر ثابت کر دیا تو آپ مسلک حق یعنی مسلک اعلی حضرت کو قبول کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے دوست، میں نے آپ سے یہ کہا تھا، دیکھو ایک بات بہت پہلے میں یہ عرض کرتا ہوں، جہاں بھی غلط الفاظ شروع ہو جائیں گے ہم فون کاٹ دیں گے، یاد رکھنا اس بات کو، ٹھیک ہے؟ ابھی تک میں نے کوئی غلط الفاظ بولے ہیں یہ بتائیے آپ؟ نہیں، ہم ایک بات کہہ رہے ہیں، اگر آگے آئے تو شروعات تو بہت اچھی ہوتی ہے، انتہا خراب ہو جاتی ہے۔ اب اچھا وجہ یہ ہے کہ ہمارے بھائی نے وہ ہماری ریکارڈنگ سن لی تھی تو ہم کو انہوں نے سمجھایا، کہا اس طرح بات نہیں کرتے ہیں، تو اس لیے جہاں بھی اگر وہ آئے گی الفاظ میں خرابی ہم فون کاٹ دیں گے، ٹھیک ہے؟ پہلے ہاں، سنیں ہم آپ کے اکابر کا ادب سے نام لیں گے، آپ ہمارے اکابر کا ادب سے نام لیں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں ادب سے بات ہوگی، اصول و ضوابط کے ساتھ بات ہوگی۔ جی پہلے بالکل آپ اس بالکل۔ چیز کو مان لیں کہ اگر میں نے کافر ثابت کر دیا تو آپ بریلویت کو قبول کریں گے؟ بریلویت کو کیوں قبول کروں گا؟ حق بات کو قبول کروں گا۔ میں نے کب کہا ہے کہ آپ دیوبندیت کو قبول کریں گے؟ اچھا یعنی کافر مانو گے آپ؟ اگر میں نے کافر ثابت کر دیا تو کافر مانو گے؟ بات یہ ہے کہ حق بات قبول کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا یعنی اور ہم نے احمد رضا صاحب کو کافر ثابت کر دیا تو مانو گے؟ نہیں اس کو میں بات ہی نہیں کر رہا، میں تو آپ کو موضوع کیوں نہیں بات کرو گے؟ ہم تمہارے کعبے کے متعلق گفتگو کریں گے، تم ہماروں پہ تھوڑی کرتے رہو گے۔ ارے جناب جناب جناب، مدعی میں دعویٰ میرا ہے تو موضوع مدعی بھی تم میرا ہو ہے۔ تو دو مدعی بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، ایک طرف سے آپ مدعی ہو جائیں گے، ادھر سے میں مدعی ہو جاؤں گا۔ موضوع جو چل رہا ہے وہ موضوع یہ ہے کہ آپ کے اکابر کافر ہیں، تو موضوع سے ہٹنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو موضوع سے ہٹے گا، جو موضوع سے بھاگے گا، موضوع بدلے گا، اس کی شکست کو بھی اس کی شکست کا اعلان کر دیا جائے گا۔ ایسے کیسے؟ تو میں بھی تو آپ کے اکابر کے متعلق کچھ کہوں گا یا خاموشی بیٹھا رہوں گا؟ نہیں، آپ جو اس کا دفاع کریں گے، آپ موضوع سے نہیں ہٹیں گے، اسی موضوع پہ رہ کر کچھ بھی کرنا آپ کو۔ ہاں تو کوئی بات نہیں، ادھر سے میں بھی کہوں گا۔ چلو شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی المکین الامین۔ تو سب سے پہلے میرے سامنے ایک کتاب ہے آپ کی، حفظ الایمان۔
अच्छा, इसका फोटो भेजिए जरा, जी जी, यहाँ से ही पढ़ के। जी हिफ्जुल ईमान है, सफा नंबर इसका 15 है। हाँ, फोटो भेजियो, पूरी का भेजना तो- दोस्त, आप काट पीट के ना भेजना, एक सफा पीछे से एक सफा आगे से, दो सफे भेजने हैं। अच्छा सही है? जी जी ठीक, कोई वो बात नहीं, मैं पूरा भेजूंगा आपको। भेजिए भेजिए। हाँ, मेरे सामने ये है हिफ्जुल ईमान, इसका आप फोटो भेजो, मैं अभी क्या नाम है फोटो देखने के चक्कर में हूँ। आप पूरी इबारत तो सुने आप, हाँ, इबारत सुनाइए। इबारत सुना, आराम से फोटो, आराम से सुकून से बात होगी, इत्मीनान के साथ, टेंशन ना लें आप। जी ठीक है, हाँ, जो मुझसे इत्मीनान के साथ बात करता है मैं उससे सुकून के साथ बात करता हूँ, बिल्कुल। ठीक है। जी, तो ये किताब है हिफ्जुल ईमान, सफा नंबर इसका 15 है, और ये लिखने वाले इसके मुसन्निफ हैं मौलाना अशरफ अली थानवी। ठीक है, हाँ, ये लिखते हैं कि आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर, यानी एक ज़ेद है, सवाल हो रहा, तो सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं कि आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म क्या जाना, अगर बकौले ज़ेद सही हो तो दरियाफ्त तलब ये अम्र है कि उस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल गैब है। अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद है तो इसमें हुजूर ही की क्या तखसीस, ऐसा इल्म गैब तो कैसा ऐसा कैसा कैसा तुमने सुना भी, आगे सुनो फिर इसकी वजह। अरे दोस्त, यही तो असली जुज है। जी जी फरमाऊंगा। इसी के लिए तो हम चाहते हैं सलाहियत परखना। अभी आगे शायद 2 मरतबा अरबी में शायद आप ही से बात हुई थी, है ना? नहीं, आप सुने, मेरी बात सुने पहले आप। हाँ, आप मेरी बात सुने पूरी, अभी बीच में रेहान साहब, आप मेरी बात सुने पहले, तो आप जो है टाइमिंग और फिक्स कर लें, ठीक है? आपके टाइम में मैं नहीं बोलूंगा, मेरे वक्त में आप नहीं बोलेंगे। अरे यार दोस्त, इतनी देर में तो भूल जाएंगे, तुमने क्या कह के निकल गए तुम? नहीं, मैं असल में मुनाजिर वगैरह नहीं हूँ, बात ये है। ऐसा मजा नहीं आएगा, ऐसा मजा नहीं आएगा कि आप मेरे वक्त में बोला फिर मैं आपके वक्त में। तो मैं बाकायदा मुनाजरों की तरह पकड़ नहीं कर सकता, मैं तो एक साथ कुछ तुम बोलो कुछ मैं बोलूँ, उसी पे ही बात करना चाहता हूँ बस। नहीं, ऐसा मजा नहीं आएगा, 2 मिनट आपकी 2 मिनट मेरी। हाँ, तो इस लफ्ज को याद दिलाओगे, अगर मैं भूल जाऊंगा तो ऐसा का क्या मतलब है? ठीक है, नहीं, आप मेरे वक्त में कुछ भी नहीं बोलेंगे, आप अपने वक्त में अपना एतराज रखेंगे। अरे यार दोस्त, ये तो खामखाई की बात है। नहीं भाई, क्या मतलब है? कोई मुनाजरा थोड़ी हो रहा है, एक आम गुफ्तगू हो रही है। आम गुफ्तगू हो रही है, मगर इसमें गुफ्तगू में फिर समझ में नहीं आएगी ना। बात ये है कि आप कुछ कहेंगे, मैं कुछ करूंगा, में वजाहत तो करते चलो, ऐसा कैसा? नहीं, आप अपने वक्त में बोलना, मैं आप उसके एतराज का जवाब दूंगा। यार बड़ा मसला है। नहीं, ऐसा बात नहीं बनेगी, ठीक है? अब मैं टाइम लगा रहा 58 हो रही है, 2 मिनट बाद बोलना आप, ठीक है? बोलो जी। हाँ, तो ये आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म क्या जाना, अगर बकौले ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त तलब ये अमर है कि इस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल गैब। अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद है तो इसमें हुजूर ही की क्या तखसीस, ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद व अम्र, बल्कि हर सबियो मजनून, बल्कि जमीय हैवानात वाहिन के लिए भी हासिल है। ठीक है, माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। अब देखें आप, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को जानवर, पागल या बच्चे की तरह लिखते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह। मगर हदीस पाक क्या कहती है? हदीस पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुझे वो सब कुछ बता दिया जो क़यामत तक होने वाला है। हदीस है अल-मुस्तदरक, हदीस नंबर 8380 है, ठीक है? तफसीर इब्ने कसर हदीस इसका नंबर है 5157। तफसीर तबरी में भी यही मौजूद है, इसका सफा नंबर है या कुछ और है? ये तबरी है या तबरी है, क्या है? आप फिर बोले। अरे यार भैया, तो 2 मिनट तो हो चुके, फिर बोले, मेरी बात मुकम्मल होने तो अभी 2 मिनट में 10 सेकंड बाकी है अभी। चलिए, तो मेरे प्यारे इस्लाम भाई, हदीस पाक कह रही है कि अल्लाह के नबी को सबका फोटो भेजना, जिन चीजों का हवाला जो मैं बोल रहा हूँ सब भेजूंगा। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वो सब कुछ बता दिया जो क़यामत तक होने वाला। हदीस अल-मुस्तदरक हदीस नंबर 8380 है। मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, अब देखें, नबी ने हज़रत हुज़ैफ़ा को सब कुछ बता दिया जो क़यामत तक होने वाला सब बता दिया, मगर मौलाना अशरफ अली थानवी कह रहा है कि नबी में ऐसा इल्म है जैसा एक पागल में, एक बच्चे में, एक मजनून में होता है। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। अब आप बताइए, ईमान का तकाजा क्या है? जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को जानवर से, पागल से, बच्चों से तशबीह दे, वो क्या है? जी, वो पूरी
جی جی اب آپ بولیے، آپ کا وقت ہے اب۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اولن میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کل غیب ہے یا بعض غیب ہے؟ ہاں اب بولیں گے نہیں آپ؟ جی جی بولیے۔ میں یہ چاہوں گا کہ آپ پہلے یہ بتلائیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ تمام کل غیب مانتے ہیں یا بعض غیب ثابت مانتے ہیں؟ اس کی وضاحت کرنے کے بعد نہیں بولیں گے نہیں اب، اس کی وضاحت کرنے کے بعد میں جو حدیثیں آپ نے پڑھی ہیں سب کا میرے پاس فوٹو بھیجیں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ یہ حدیث کیسی ہے، ضعیف ہے یا صحیح ہے۔ جب آپ حدیث کا حکم بیان کر دیں گے تب جا کے آپ کی بات مانی جائے گی۔ یہ سب باتیں جب بیان ہو گئیں تو اب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ کل غیب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں تو پہلی بات تو میری ہے کہ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، کہ میں غیب نہیں جانتا ہوں۔ تو اس آیت کریمہ کا کیا مطلب ہے؟ اور اسی طریقے سے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی، سنتے رہیے اب 2 منٹ پر آرام سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان رہے تھے۔ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ ہوتا تو اللہ کے نبی کیوں پریشان ہوتے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگوں میں جاتے تھے اور باقاعدہ دعائیں کرتے تھے۔ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب ہوتا تو جنگوں میں کیوں جاتے؟ جب ان کو علم غیب تھا ہر بات کا تو وہیں سے پتہ چل جاتا کہ ہاں اللہ ہم یہ جنگ جیتیں گے، لہذا ہم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب تمام چیزوں کا تھا تو پھر وحی کی کیوں ضرورت پیش آتی تھی؟ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر علم غیب ہے تو بہت سے مواقع ایسے ہیں جہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی باتوں سے خود بھی رجوع کیا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف 2 رکعتیں پڑھا دی تھیں، حالانکہ 4 رکعتیں پڑھانی تھی۔ تو صحابہ کرام نے یاد دلایا کہ آپ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد دلایا اور کہا کہ نماز کب ہو گئی یا کچھ ہو گیا؟ اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ؟ تو دیکھیے ہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھول گئے تھے۔ اگر علم غیب ہوتا تو اللہ کے نبی بھولتے نہیں۔ اسی طریقے سے ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، کہ ہر کسی چیز کے متعلق یہ کہنا کہ ہم کہیں گے الا ان نشاء، اس طرح کی کوئی آیت کریمہ ہے۔ اور اگر آپ جب بھول جائیں کیا ہوا؟ تو ان ساری باتوں سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کل غیب نہیں ہے، اس کی تو بالکل نفی ہو گئی۔ اور اگر بعض غیب آپ مانتے ہیں تو اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا تفصیل رہ گئی ہے؟ وقت مکمل ہو گیا۔ آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ۔ پارہ نمبر 18 رکو نمبر 8 سورۃ النور۔ جب ثبوت نہ لا سکیں تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ میرے پیارے ناظرین، ہم نے بات کیا ہو رہی تھی اور جناب بات کس طرف لے گئی؟ بات ہو رہی تھی اشرف علی تھانوی صاحب کے کفر پر، مگر یہ علم غیب پر بات لے گئی۔ حالانکہ بات علم غیب پر ہوئی نہیں، موضوع سے یہ ہٹے، اور میری شرط یہی تھی جو موضوع سے ہٹے گا اس کی شکست ہوگی، تو یہ موضوع سے ہٹ گئی، کیونکہ ہمارا موضوع تھا کہ ان کے اکابر کافر ہیں، اور انہوں نے جو موضوع سے ہٹ گئے کہ اللہ کے نبی میں علم غیب نہیں، یہ حدیث وہ حدیث وہ حدیث، تو موضوع سے ہٹ گئے، ان کی بہت بری طریقے سے شکست ہو گئی ہے۔ آپ نے بخوبی جو ہے سماعت کر لیا۔ دوسری بات خاموش رہیں جناب، خاموش رہیں آپ، ابھی وقت میرا، آپ آگے بولیں گے، بات کریں گے یا فون کاٹیں گے؟ اب یہ وقت میرا ہے، خاموش رہیں، وقت میرا ہے، خاموش کریں گے نا، وقت میرا ہے جناب، خاموش رہیں، میں کچھ نہیں بولا تھا آپ کے وقت میں، خاموش رہیں آپ، خاموش رہیں۔ تو جیسا کہ اللہ نے فرمایا فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ۔ جب ثبوت نہ لا سکے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ تو آپ نے دیکھ لیا یہ اس کفری عبارت کا کوئی ثبوت نہ لا سکے، اور انہوں نے جو ہے اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر، جو ہے وہی کام کیا جو شیطانوں کا کام ہوا کرتا ہے۔ یعنی ہم بات ہو رہی ہے کھیت کی، یہ کھلیان کی بات کرنے لگے، اور بات ہو رہی تھی اشرف علی تھانوی کے کفر پر، اور یہ اللہ کے نبی کے علم غیب پر بات کرنے لگے۔ یہ موضوع سے بھاگ رہے، ان کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر کوئی ثبوت ہے تو آپ ثابت کریں کہ وہ مسلمان ہے اور یہ گستاخی نہیں ہے، ثابت کریں آپ۔ ہو گئی؟ جی جی بولیے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی قرار دی، اس لیے کہ یہ کہہ دیا انہوں نے کہ اگر کل غیب مانتے ہیں تو اس کو تم بتلائیے نا کہ کل غیب ثابت ہے یا نہیں۔ تو انہوں نے یہ پہلو بیان کر دیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟
नहीं अब आप नहीं भी नहीं चुप नहीं रहें, अब आप चुप रहेंगे हमारे वक्त में भाई। बोलिए। तो अब कुल्ले गैब भी आपको अगर मानते हैं तो इसको साबित करें, और अगर बाज़े गैब आप मानते हैं तो इसको तुम्हें साबित करना रहेगा, वो तो एक अलग बात है। और मैंने बहुत सी हदीसें और जो आयत करीमा पेश की है, ये इसलिए पेश की है ताकि पता चल जाए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुल्ले गैब तो बिल्कुल भी नहीं है। रहा बाज़े गैब, तो उसके बारे में मुसन्निफ अलैहिर्रहमा फरमा रहे हैं कि अगर ऐसा बाज़े गैब तुम मानोगे तो इसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कोई तफसीस नहीं है। ऐसा कैसा, यानी बाज़े गैब। तो ऐसा को आप समझें, ऐसा से मुराद है बाज़े गैब, कि बाज़े गैब तो चौपायों को भी होता है और सभी को भी होता है, बच्चे को भी होता है। और ये बात बिल्कुल हकीकत है कि अगर बच्चे को गैब नहीं है, बाज़े चीज़ों का पता नहीं है, तो उसको कैसे पता चल जाता है कि हाँ मुझे अपनी वालिदा के जिस्म से दूध कैसे पीना है, और इसी तरीके से उसको टांगे चलाने का पैदा होने के बाद और बहुत सी चीज़ों का पता कैसे चल जाता है। तो मुसन्निफ अलैहिर्रहमा ये कह रहे हैं कि ऐसा बाज़े गैब जो तुम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को साबित कर रहे हो और ये शान में आपके पेश कर रहे हो, शान बयान करने के लिए तो बहुत सी चीज़ें हैं। ये तो ऐसी चीज़ है कि तुम चाह तो रहे हो शान बयान करना, लेकिन तुम पे सही तरीके पर शान बयान हो नहीं पा रही है। तो वो ये कह रहे हैं कि ऐसा गैब तो ये तो जानवरों में भी पाया जाता है, तो इससे अल्लाह के नबी की शान साबित नहीं होगी। शान के लिए तो अल्लाह के नबी की बहुत आला दर्जे की चीजें मौजूद हैं, कुरान का उतारा गया ये चीज मौजूद है, मौजिज़ात हैं ये मौजूद है, अल्लाह के नबी की बहादुरी है ये मौजूद है, ये सारी चीजें मौजूद हैं। वक्त खत्म हो तो गया, इनसे शान बयान करनी चाहिए। जनाब खामोश हो जाए आप। देखो सामाईन, पहली बात तो ये है कि ये जो है रेहान रजा साहब, रजा क्यों होता है? रेहान वो ये जो रेहान है मौलाना रेहान, तो ये किस तरीके से डंडी मारने की कोशिश कर रहे हैं। बात गैब या बाज गैब या कुल गैब या मा कान व मा यकून, इस पर बात नहीं हो रही थी। बात सिर्फ ये है कि अशरफ अली थानवी साहब ने अपनी किताब हिफ्जुल ईमान में गुस्ताखी की है। बात ये नहीं बाज गैब है या कुल गैब है, इस पर बहस इंशाअल्लाह होगी, आप जब अलग टॉपिक रखेंगे उस पर। इससे जो टॉपिक हमारा जो है वो बाज या कुल पर नहीं है, हमारा जो टॉपिक है वो ये है ऐसा, यानी हमारा जो टॉपिक है वो ये है मजनू पागल बच्चे से जो तशबीह दी है, यानी मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान ऐसी है, उनकी शान को जो है, उनके इल्म को जो है एक जानवर से तशबीह देना ये कैसा है, एक बच्चे से तशबीह देना ये कैसा है, एक पागल से तशबीह देना ये क्या है। बात ये हो रही है जानवरों से, यानी नबी और कहाँ जानवरों से तशबीह दी जा रही है। बात ये है सिर्फ, मगर इस पर अभी तक ये कोई जवाब ना ला सके तो इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको बार बार ये बात याद दिलाता रहूंगा कि ये जो बात हो रही है वो इल्म गैब या बाज गैब या कुल गैब की नहीं कर रहा, मैं सिर्फ तशबीह की बात कर रहा हूँ, तशबीह की बात कर रहे हैं जो तशबीह दी जा रही है यहाँ पर, ठीक है। दूसरी बात, और दूसरी बात मुकम्मल तरीके से देखो आप, इनके अकाबिर का जो कुफ्र है सिरात मुस्तकीम है, सफ़ा नंबर 118 है। अरे पहले इसी की बात कर लो, ठीक है। वो कुफ्र, मैंने पहली बात तो सुने आप, मैंने क्या कहा था, कुफ्र साबित करूंगा तो मेरे ऊपर ये पाबंदी नहीं है कि इसी इबारत पर बात करूँ, दूसरी इबारत पर बात करूँ। मैंने ये मुकम्मल तरीके से आप बिल्कुल खामोश रहे, बिल्कुल खामोश रहे, आप मेरे वक्त में नहीं बोले। आपकी ये गंदी आदत लगती है मेरे वक्त में बोलते हैं आप, आपकी ये गंदी आदत लगती है मेरे वक्त में बोलते हैं आप। मैं खामोश रहता हूँ, आप खामोश हैं, मैं कुछ बोला। अच्छा एक ही बात एक ही बात पे बात हमने कर ली है, तो आप जो बात करेंगे वो इल्म गैब या कुल गैब को नहीं लाएंगे, आप सिर्फ तशबीह की बात कर रहे हैं, तशबीह जो दी जा रही है, ठीक है। बोले आप। पहली बात तो ये है, बार बार आपको समझा रहा हूँ कि इस मसले को जब ही समझोगे, जबकि उस बात को समझोगे, तो उसका मतलब ये थोड़ी है ना कि सिर्फ तशबीह 2 मिनट तुम बोलते रहोगे, तशबीह 2 मिनट में बोलता रहूंगा। हजरत यही फरमा रहे हैं कि जैसा कुरान और हदीस से साबित है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुल्ले गैब बिल्कुल नहीं है, ये बात साबित है। और आप हजरात इसको यानी कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में इस इल्म गैब को साबित मानते हैं, तो वो यही फरमा रहे हैं कि कुल्ले गैब तो साबित है नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि सराहत के तौर पे अहादीस मौजूद हैं और इसी तरीके से कुरान करीम की आयत मौजूद हैं। रहा ये कि बाज़े इल्म गैब, उसी को मैं बार बार समझा रहा हूँ कि ऐसा से मुराद बाज़े इल्म गैब है,
کہ باز علم غیب، یہ باز علم غیب تو ہر کسی کو ہوتا ہے، تو اگر باز علم غیب کی بنا پر عالم الغیب کہا جائے گا تو پھر مچھلیوں کو بھی عالم الغیب کہنا چاہیے، اور اسی طریقے سے اور بہت سی بچے ہوتے ہیں ان کو بھی عالم الغیب کہنا چاہیے، حالانکہ ان کو کوئی عالم الغیب نہیں کہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو تھوڑا سا علم غیب ہے۔ تو جب ایسا باز علم غیب ان کو بھی ہوتا ہے، بعض علم غیب تو نہیں کہیں، بعض علم ان کو بھی ہوتا ہے، اور یہ بعض علم جیسا کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے، تو ایسا سے مراد ہے بعض علم غیب۔ تو بعض علم غیب کی بنا پر عالم الغیب نہیں بن جاتا ہے کوئی، اور اگر یہ کہا جائے کہ عالم الغیب بن جائیں گے تو ہم یہ اس لیے منع کر رہے ہیں کہ قرآن کے عقیدے کے خلاف لازم آئے گا، حدیث کے عقیدے کے خلاف لازم آئے گا۔ ہمیں یہ کہنے میں کہ اللہ کے نبی کو کل غیب ہے یا بعض غیب ہے کوئی پریشانی نہیں ہے، پریشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی شان بلند کرنے والے ہیں، وہ خود ہی کہہ رہے ہیں، کہلوا رہے ہیں کہ میں غیب نہیں جانتا ہوں، تو ہم کو کوئی پریشانی نہیں ہے اس سلسلے میں، قرآن کی آیتوں سے تعارض ہو جائے گا، اس بنا پر مثلاً یہ کہہ رہے ہیں ہم۔ آپ کا وقت مکمل ہو گیا، ہمارا وقت بہت جلدی مکمل ہو جائے یار، تمہارا وقت مکمل ہوتا۔ بھائی 3 منٹ ہو گئی یار، آپ گھڑی نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ کیا بات ہے؟ ٹائم میں ٹائم دیکھ کر بات کر رہا ہوں جناب۔ ٹھیک ہے، میں آپ کا ٹائم دیکھ رہا ہوں گھڑی میں، بالکل جی جی بالکل دیکھیں آپ۔ ہاں تو 8:20 پہ شروع ہو رہا ہے آپ کا سیکنڈ سے، کریے شروع جلدی۔ جی سامعین، تو آپ نے دیکھا یہاں یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ ایسا سے مراد بعض علم غیب ہے، ایسا سے مراد بعض ہے، تو ایسا سے مراد اگر بعض ہوتا تو یا بعض ہوتا تو یہاں پر عبارت آپ دیکھیں، اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب ہے؟ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ یعنی اگر میں یہ کہوں اس میں لکھا ہے اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے، کیا خاصیت ہے ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات واہم کے لیے بھی حاصل ہے۔ اب میں کہوں کہ اگر اشرف علی تھانوی صاحب کو اگر کوئی علم حاصل ہے تو ان کی کیا خاصیت ہے؟ ایسا علم تو جانوروں کو حاصل ہے، ایسا علم تو پاگلوں کو حاصل ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ چیز کیا ہے؟ یہ اصل در اصل یہ گستاخی ہے۔ تو یہاں پر مراد کیا ہے؟ میں بات علم غیب پر نہیں کر رہا، یا کل غیب ہے یا بعض غیب ہے اس پر نہیں کر رہا، ہم تو مانتے ہیں، ہم ما کان و ما یکون کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اس چیز کو ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے، ما کان و ما یکون کو مانتے ہیں، مگر یہاں پر یہ کہنے کی کیا صورتحال پیش آ گئی کہ جو بچوں کو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو بچوں سے تشبیہ دیا گیا، جانوروں سے، پاگلوں سے تشبیہ دیا گیا۔ ارے یہ بتاؤ، یہاں پر علم کی بات ہو رہی ہے، اگر میں کہوں کہ آپ میں ریحان صاحب آپ میں جو علم ہے ایسا علم تو پاگلوں کو حاصل ہے، تو کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ میں یہ کہوں کہ آپ میں جو علم حاصل ہے، آپ کے والد کو جو علم حاصل ہے ایسا تو ہمارے بچوں کو حاصل ہے، کہ گستاخی نہیں ہے؟ تو میں بار بار آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ ٹاپک سے نہ بھاگیں، بلکہ آپ اسی آیت کے زد میں آتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، جب ثبوت نہ لا سکے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا یہ حقیقتاً در حقیقت کفر ہے۔ چپ جائیے، آپ ثابت کریں کفر نہیں ہے۔ ہاں ہاں بالکل ثابت کر رہا ہوں، اسی کا تو جواب دے رہے ہیں جو آپ ما یکون اور وما کان کا جو علم آپ علیہ السلام کے لیے مانتے ہیں، اسی کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر تمام کا مانا جائے گا علم غیب تو یہ قرآن اور حدیث کے خلاف لازم آئے گا، اور اگر بعض علم غیب آپ ثابت مانتے ہیں اور اس کو شان میں بیان کرتے ہیں، اس کو شان میں بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی شان بیان کرنے کے لیے تو اور بہت سی چیزیں ہیں، اور یہ تو ایسا ہی ہو جائے گا کہ جیسے یہ کہا جائے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھانا کھاتے ہیں، وہ بات ٹھیک ہے کہ آپ کا انداز، آپ کا کردار اور آپ کا انوکھا پن بہت ہی اعلیٰ درجے کا، بہت ہی شاندار ہے، لیکن کوئی یہ کہے کہ اللہ کے نبی کھانا کھاتے ہیں تو یہ کھانا کھانا فضیلت ہے، تو یہی تو کہا جائے گا ایسے تو کھانا اور بھی لوگ کھاتے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض علم غیب کو جو تم فضیلت میں بیان کر رہے ہو، یہ فضیلت میں بیان کرنے والی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ بعض تو بچوں کے لیے بھی حاصل ہوتا ہے، اسی کو بار بار کہہ رہے ہیں، اور تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے۔ میں بار بار سمجھا رہا ہوں کہ ایسا کا مطلب یہ ہے کہ بعض علم غیب اور بعض علم غیب کو تم شان میں بیان کرتے ہو، ہم یہ کہتے ہیں شان بیان کرنے کے لیے تو بہت سی چیزیں ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت کس لیے نہیں ہے کہ قرآن و حدیث کے یہ مخالف ہے،
हमको कोई परेशानी नहीं है। बार बार हम यही समझा रहे हैं कि कुरान और हदीस के मुखालिफ होने की बिना पर हम ये कह रहे हैं। हमको क्या गरज पड़ी है कि हम आप अलैहिस्सलाम की शान नाउज़ुबिल्लाह कम करना चाहें और कम हो जाएगी कैसे? तो ऐसा कोई ना मकसद है और ना ये बयान किया जा रहा है। ये खामखा फिर वो पैगिंदा है जो लोगों को ज़हनों को खराब करने के लिए समझाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है। ऐसा कोई मसला नहीं है। तो जनाब आपका टाइम मुकम्मल हुआ। रियान भाई देखो 18 से बात शुरू हो रही है, ठीक है? टर्न लगा लेना आप, ठीक है? तो आप जो मिसाल देने की कोशिश कर रहे हैं और गुमराह इधर उधर घुमाने की कोशिश कर रहे हैं आप, मैं आपको बार बार ये बात कहना चाहूंगा, इल्म गैब का टॉपिक अलग है। उस टॉपिक पे जब आप चाहें, रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, जब चाहें उस टॉपिक पे मैं बात करने के लिए राजी हूँ। यहाँ पे सिर्फ तशबीह की बात चल रही है। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ही बयान करनी थी तो किसी और चीज को लेकर बयान कर लेते। अब कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी भी खाना खाते हैं, तुम भी खाना खाते हो। मैं कह रहा हूँ कि आप भी खाना खाते हैं, कुत्ता भी खाना खाता है, आपका काबिर भी खाना खाता है, कुत्ता भी खाना खाता है। तो ऐसा थोड़ी है हम कहते हैं कि अशरफ अली थानवी खाना खाता है तो एक कुत्ता भी खाना खाता है। अशरफ अली थानवी खाना खाता है तो इसमें उनकी क्या तखसीस है, उनकी क्या खासियत है? कुत्ता भी खाना खाता है। अब ये बताइए क्या है? अब मैं कह दूं कि अशरफ अली थानवी साहब सोते हैं, एक कुत्ता भी सोता है, उनकी क्या तखसीस है? अब मैं कह दूं रशीद अहमद गंगोही सोते हैं, कुत्ता भी सोता है, इनकी क्या तखसीस है, इनकी क्या खासियत है? तो मेरे भाई तो आप टाइम हो गया दोस्त 18 पे शुरू किए दोस्त, 1 मिनट हुई है अभी, ठीक है? 1 मिनट हुई है। तो आप बार बार इस चीज को ना ला के इल्म गैब बाज इल्म गैब, मैं आपको किस तरीके से समझाऊं कि तशबीह की बात हो रही है यहाँ पर। मिसाल देना था किसी और तरीके से भी दे सकते थे, मगर बच्चों से, पागल से, मजनू से तशबीह क्यों दी? जानवर से तशबीह क्यों दी? ऐसे तो हम भी बच्चों से, पागल से, जानवर से तशबीह दे दें तो ये गुस्ताखी नहीं है। सिर्फ तशबीह, अगर आप आगे बात करें तो तशबीह की ही बात करें कि तशबीह देना क्या है, ठीक है? आगे इल्म गैब बाज इल्म गैब इस पर आप गुफ्तगू बिल्कुल ना करें। आप सिर्फ तशबीह की बात कर रहा हूँ मैं, ना कि इल्म गैब बाज इल्म गैब। इस पर जब आपका दिल चाहिए बात कर लेना, ठीक है? इल्म गैब और गैर इल्म गैब इस पे आप कर लेना, मैं भी बड़ा तैयार हूँ, खुशी से तैयार हूँ। बिल्कुल मैं तैयार हूँ, अगर इस पे बात हो जाए कि ये बताइए गुस्ताखी है या नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि तुम खाना खाते हो, कुत्ता भी खाना खाता है, आप कहिए। इसी तरीके से आप जो कह रहे हैं अशरफ अली थानवी सोते हैं और कुत्ता सोता है, तो आप कहिए, हमको इसमें कोई परेशानी नहीं है। यानी अशरफ अली थानवी और कुत्ते में कोई फर्क नहीं है? सुना तो सही। अरे भाई तशबीह का मतलब ये है जिस वस्फ में दी जा रही है। नहीं, एक मिनट, कोई फर्क नहीं है। अशरफ अली थानवी में कुत्ते में कोई फर्क नहीं है। अभी तो तुम कह रहे थे, तुम हमारी बीच में बोल जाते हो तो हमको फर्क है या नहीं? आपने बात ऐसी कर दी, कोई फर्क है या नहीं? अरे भाई सोने में तशबीह दी जा रही है ना। अरे भाई जैसे वो सोते हैं ऐसे कुत्ता भी सोता है, इसमें क्या है? यानी कुत्ते में उसमें कोई फर्क ही नहीं है, कुत्ता है। अरे भैया कुत्ते की बात चल रही है या सोने की बात चल रही है? अरे कैसे बात तो ये चल रही है। तशबीह का मतलब तशबीह किस में दी जाती है? अच्छा ये बताइए, वस्फ ही में तो दी जाती है कि जात से तशबीह दी जाती है? जही तुम नबी को पागलों से तशबीह दी जा सकती है? इधर ना घुमाओ, तुम बहुत नहीं, आप ये तो बता दो, तशबीह किस में दी जाती है? नबी से पागलों से तशबीह दी जा सकती है? अरे भाई तशबीह वस्फ में दी जा रही है। तुम इतनी बात नहीं समझते यार, क्या आलिम पढ़ा है तुमने? तुम क्या समझते हो तुम ये बताओ? भाई मैं ये कह रहा हूँ तशबीह वस्फ में दी जा रही है कि जैसे मैं सोता हूँ कुत्ता भी सोता है। अच्छा, तो सोना जो एक आरिज है, एक अर्ज है। अर्ज तो जानते हैं ना, जौहर के मुकाबले में जो आता है, जो बजाते खुद कायम न हो सके, किसी महल का खास महल का मोहताज न हो। ये जो अर्ज है, इस अर्ज में तशबीह दी जा रही है, नौइयत में नहीं दी जा रही है। नौइयत दोनों की अलग अलग रहेगी। वस्फ अर्ज जो है, नींद, सोना, इसमें तशबीह दी जा रही है। तो इसमें क्या है? अरे ये वस्फ अर्ज जो है, यानी आप ये नहीं जानते कि अल्लाह के नबी की इसमें गुस्ताखी है या नहीं? वस्फ अर्ज में अगर वो तशबीह दी जाएगी तो वो गुस्ताखी नहीं होगी। यानी अल्लाह के नबी की शान क्या, वो कुत्ता कहाँ, जानवर कहाँ, पागल कहाँ? ये आपको समझ में नहीं आ रहा है? वही तो तुम नहीं समझ पा रहे हो, हम तो समझ रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है ये चीज, क्योंकि आपकी जो आंखों पर पर्दा लग चुका है इस चीज का। तो इसका मतलब ये है कि आप जो चौपाई है इनको बातिल में गैब नहीं है, वो अला अब स्वारी मुशावत वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। हाँ,
हाँ, बात ठीक है, आपके जो है आपकी आयत करीमा बरहक है, लेकिन किसी और पे फिट आ रही है, हम पे फिट नहीं आ रही है। बिल्कुल बरहक है आप पर, ये हाँ, जो है वजाहत फिट करने आ के रही है बावजूद नहीं समझ पा रहे हैं, कुछ हजरात उन्हीं पे फिट आ रही है। आपके ऊपर बिल्कुल आयत फिट आ रही है। अब सुनो मैं इस मेरी बात, तरीके से सुनो तुम वजाहत इसकी हाँ, कर मेरी रहा बात हूं, मगर सुनो। आपके इस बात को समझ में नहीं आ रही अच्छा है। ये बतलाइए, तुमको नींद आती है, कुत्तों को नींद नहीं आती है? हाँ? कुत्तों को नींद नहीं आती है? कुत्ते को नींद आती है, मगर मेरी नींद और कुत्ते की नींद में फर्क नहीं है। कुत्ता कहाँ घूमू तो अरे सोने वाला। भाई, अरे यार, नींद जो एक वस्फ है, क्या वो और वो दोनों अरे वस्फ नहीं है? एक मिनट वस्फ एक होता है वस्फ, तो वस्फ जो है वस्फ हर किसी की तरफ से मंसूब थोड़ी किया जाएगा। यानी एक कुत्ता है, एक राजा है, राजा को प्रजा की तरफ मंसूब थोड़ी किया जाएगा। कैसे समझाऊं मैं तुमको? या तो तुम नहीं समझ रहे हो, अमदन नहीं समझ रहे हो, आप नहीं समझ पा रहे हैं बिल्कुल भी। मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ गया। तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारी नींद में और कुत्ते की नींद में फर्क है, यही तो कह रहे हो? बिल्कुल ठीक है, फर्क है, लेकिन किसी चीज में शरीक है या नहीं, ये बतला दो। है? अगर बिल्कुल शरीक नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब अगर ये कहो कि बिल्कुल ही शरीक नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि कुत्ते को नींद ही नहीं आती है। अरे मेरे भाई कुत्ता एक अलग मखलूक है, इंसान हाँ, अलग मखलूक है, ठीक है। हाँ, हम जो है उम्मती अलग हैं, नबी हाँ, अलग हैं, तो हाँ, नबी की शान भी अलग है, नबी का मकाम भी अलग है। हाँ, तो नबी की शान अलग, उनका मकाम अलग, उनकी हाँ, जात अलग, उनका वक्त अलग, तो जानवरों से पागल से तशबीह क्यों दी गई? अरे दोस्त, मिसाल का मुमस्सल लहू के बिल्कुल मुताबिक होना जरूरी नहीं होता है। बाजियत में तशबीह दी जा रही है, बाजियत में क्यों दी जा रही है? में भी नहीं दी जा रही है। बाजियत में दी क्यों जा रही है? बाजियत में इसलिए दी जा रही है कि तशबीह में ये जायज है। अच्छा, यानी कि हाँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पागल से तशबीह देना जायज है? अरे नबी को नहीं दोस्त, बार बार मैं ऐसा समझा रहा हूं कि मैंने कब कहा अल्लाह के नबी को तशबीह देना? मैंने कहा यहाँ पर अल्लाह के नबी को जानवरों से तशबीह दी जा रही है, ये समझ नहीं नहीं दे आ रहे। रहा। तो अब हमारा कलाम है, हम इसका वजाहत करेंगे या तुम वजाहत करोगे? ऐसे तो मैं मिसाल के तौर पे कह दूं, अहमद रजा साहब ने यूं कहा है नहीं। कि एक परी बाकायदा खिदमत में हाजिर होती थी, तो मैं कह दूं नाउजुबिल्लाह वो गलत काम के लिए हाजिर होती थी, तुम मान जाओगे? मौजू से भागने की नापा कोशिश ना तो करें। तुम जब मान ही नहीं रहे हो तो मिसाल तो दे सकता हूँ मैं भी ऐसी। मौजू से भाग रहे हो, मौजू से नहीं भाग रहे हैं। जब तुम नहीं मान रहे हो तो मिसाल देनी पड़ेगी, क्या करा जाए? नहीं अहमद रजा साहिब रही, उन्होंने कहा है कि देखो मौजू से भागे। जब अक्सर खिदमत में हाजिर होती थी तो क्या करती थी? तो हम भी तो गलत मतलब निकाल सकते हैं इसका। नहीं तुम निकाल रहे हो बार बार। इसमें साफ साफ जाहिर है, उसमें भी साफ साफ है कि परी अक्सर हाजिर होती थी। मौजू से भाग रहे हैं आप, इस पे बात। मौजू से नहीं भाग रहे हैं। मौजू से क्यों भाग रहे हैं आप? चलो ठीक है, बताओ तो। मौजू से नहीं भागे आप बिल्कुल भी, ठीक है। हाँ चलो बताओ। हाँ, तो इसकी तो वजाहत मैंने कर दी, दूसरी इबारत पेश करो कोई। आपने इसकी कोई वजाहत पेश नहीं की है, ठीक है। बिल्कुल वजाहत पेश कर दी, सही तरीके से समझा दिया। बाजियत में तशबीह की जा रही है। आप इसमें साबित कर दें कि मिसाल के तौर पे हयावान नातिक। अच्छा आप सुन लो मिसाल, हयावान नातिक तो आसान मंतिक भी पड़ी होगी, मिरकात भी पड़ी होगी, सुल्लम भी पड़ी होगी। तो हैवानियत किस किस में पाई जाती है, जरा बतला दीजिए। अरे हैवानियत तो जैसे हैवानियत हम में पाई जाती है, हैवानियत चौपाया में पाई जाती है, और इसी तरीके से जितने भी हैवान हैं, गधे हैं, घोड़े हैं, बैले हैं, सब में पाई जाती है। तभी तो मिसालें बयान की जाती हैं। इस मिसाल में आपने यानी नातिक आता ही इसलिए है ताकि इंसानों को कुत्तों से और बैलों से जुदा कर दे। तो अगर ये इस वस्फ में शरीक न होते तो नातिक आता ही नहीं। नातिक के आने का मतलब यही है कि इस वस्फ में सब। अरे हैवानियत हमें क्यों पाई जाती है भाई? हैवानियत हमें इसलिए पाई जाती है क्योंकि हम इंसान है। हाँ ठीक है, वो चाहे क्यों पाई जाती है उससे कहना नहीं है। इस वक्त के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और हमारी शान में कोई फर्क नहीं है क्या? उधर छोड़ो, बहुत देर से मिसाल दे रहे थे हमारी और कुत्ते की। अब समझो यहाँ पर हैवानियत में कुत्ता शरीक है ना हमारे साथ। यहाँ पर बात क्या है? यहाँ पर बात क्या है? यहाँ ये बतलाओ दोस्त, हैवानियत में कुत्ता, घोड़ा, गधा सब शामिल है या नहीं? दोस्त वो हैवानियत अलग चीज है। यहाँ पर नबी नहीं है, हैवानियत भी एक तो एक वस्फ है। यहाँ पे सिर्फ नबी की बात हो रही है। नबी 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 को क्यों मिसाल दी गई? नबी से तशरीफ क्यों दी गई? ठीक है, बात आपकी ठीक है। नबी ठीक है, अल्लाह के नबी बशर हैं। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम में मिसाल दे रहा हूँ, उधर नहीं जा रहा हूँ कभी कहने लगो भागने लगे। तो अल्लाह के नबी बशर हैं,
اور ہم بھی بشر ہیں، لیکن آپ کی بشریت بہت اعلیٰ درجے کی ہے، اس کے برابر ہو ہی نہیں سکتی کسی کی، لیکن پھر بھی بشریت میں تو شریک ہیں۔ دیکھو بشریت والے مسئلے پہ جاؤ گے تو کہیں اور بات نکل جائے گی۔ ارے یار دوست مثال دے رہا ہوں، تم فوراً یہ کہنا شروع کر دیتے ہو۔ تو اب یہ بتلائیے حیوانیت جو وصف ہے اس میں گدھے گھوڑے سب شریک ہیں نہیں؟ اگر پہلے سے شریک نہیں تھے تو ناطق فصل کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اور اگر شریک ہیں جیسا کہ تم بھی مان رہے ہو، کتابیں اس بات پر شاہد ہیں، تو پھر کیوں تم انکار کر رہے ہو؟ میری بات سنیں آپ، دیکھو اس میں وصف میں شریک ہیں، ضرور شریک ہیں۔ جیسے انسان کو نیند آتی ہے، کتے کو بھی نیند آتی ہے، ٹھیک ہے؟ انسان میں بھی کچھ انسانوں میں حیوانیت ہے، جانوروں میں حیوانیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ یہ بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ بات صرف اس چیز کی ہو رہی ہے کہ انسان الگ ہے، یہ میرا نام ہے رضا، رضا الگ ہے، ریحان الگ ہے، کتا الگ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اگر میری مثال اگر دی جائے تو ایک بات الگ ہے، ٹھیک ہے؟ مگر یہاں پر جو نبی اس بات کو غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب، یہ امر ہے کہ اس سے غیب سے مراد بعض غیب یا کل غیب ہے، ٹھیک ہے؟ بعض غیب ہے یا کل غیب ہے؟ اب بعض یہاں پہ مراد لیجیے، بعض غیب یا کل غیب ہے؟ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں، ٹھیک ہے، یہاں کیا کہا گیا؟ بعض علوم غیبیہ مراد ہیں، تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر توجہ کرنا، بعض علوم علم نہیں ہے، کیا ہے یہاں پر؟ علم نہیں ہے، علوم، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ علوم کیا جمع، علم کی جمع، ٹھیک ہے؟ بعض علوم غیبیہ مراد ہیں، تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سبی و مجموع بلکہ جمیع حیوانات واہم کے لیے بھی حاصل ہے۔ بات پوری ہو گئی؟ ابھی کہاں ہوئی ہے؟ آپ مکمل 2 منٹ ہو گئے، مکمل سنیں میری بات۔ یہاں پہ علوم غیبیہ مراد ہے، ٹھیک ہے؟ علوم غیبیہ، تو اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب یہاں پر علم کی بات نہیں ہوئی، علوم کی بات ہوئی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ سب کچھ بتا دیا جو قیامت تک ہونے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی کتا یا جانور یا پاگل جو نبی کی طرح یہ بتا سکتا ہے؟ یا نبی جو ہے اللہ تبارک و تعالی نبی جو ہے جنت دوزخ کو بتاتے تھے، کوئی جانور یہ بتا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے؟ اب یہ نہیں کہنا کیونکہ علم غیب، علم اس میں جو علوم کی بات ہو رہی ہے، تو نبی کے اندر یہ تو علوم تھے نا، اب بقول آپ کے یہ علوم تھے نا، نبی کے اندر علوم تھے یا نہیں؟ نبی نے دوزخ بتائی، جنت بتائی، 3 منٹ لے لیے تم نے، 3 منٹ لے لیے۔ بعض کے اندر 2 پہلو ہیں، ایک بعض علوم غیبیہ، یہ ایک اس کا پہلو مطلق کا ہے اور ایک مقید کا ہے۔ جو مطلق کا پہلو ہے کہ بعض علوم غیبیہ، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ کس انداز کا ہونا چاہیے۔ اس طرح کے علوم غیبیہ یعنی مطلق جو علوم غیبیہ کی بات چل رہی ہے، ان کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ ایسے بعض علوم تو کیا نام ہے بچوں کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ اور رہا آپ کا یہ کہنا کہ پرندے نے کبھی بتلایا ہو، شاید کہ آپ نے قرآن کریم نہیں پڑھا، ہدہد کا واقعہ نہیں پڑھا ہے جو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا تھا، وہ بلقیس والا واقعہ شاید آپ نے پڑھا ہوگا، وہ کس نے بتلایا تھا؟ وہ ہدہد ہی نے بتلایا تھا۔ اور اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو علم بھی نہیں تھا، اور اسی طریقے سے ایک مرتبہ گزر رہے تھے فتبسم ضاحکا من قولها، وہ والا تم نے پڑھا ہوگا، چونٹی والا واقعہ، چونٹی نے خبر دی تھی، وہ بھی پتہ نہیں تھا۔ تو تمہارا یہ کہنا کہ کسی نے خبر دی ہو، میں نے 2 چیزیں بتلا دی، پرندے نے بھی خبر دی تھی اور اسی طریقے سے چونٹی نے بھی خبر دی تھی۔ اور جو آپ بعض علوم غیبیہ کی بات کر رہے ہیں، اس سے مراد ہیں بعض علوم غیبیہ مطلق، جس میں کسی قید کے ساتھ مقید نہیں ہوتا ہے۔ شاید کہ آپ اب یہ اصطلاحیں سمجھ بھی پا رہے ہوں، مجھے تو لگ رہا ہے شاید ان کی بھنک بھی نہیں لگ رہی ہوگی۔ تو یہاں مطلق میں نفی وہ دی جا رہی ہے تشبیہ، مطلق الگ ہوتا ہے اور مقید الگ ہوتا ہے۔ اگر اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے تو جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اگر نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو یہ آپ کی عقل کی خامی لگ رہی ہے۔ پھر مجھے سنو، آپ کی عقل کی خامی ہے۔ اب جب یہاں پر بات ظاہر ہو گئی علوم غیبیہ مراد ہے، ٹھیک ہے؟ علوم غیبیہ، اب یہاں پر کوئی بھی قید نہیں ہے کہ جو ہے بعض مطلق یا معین کیا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو قاعدہ ہے کہ مطلق بولا جائے گا تو مطلق ہی مراد ہوگا، مقید کیوں مراد؟ المطلق یجری علی اطلاق، اصول شاشی میں تو پڑھا ہوگا کہ مطلق جب بولا جاتا ہے تو مطلق ہی مراد ہوتا ہے۔
अच्छा, मुतलक ही मुराद होता। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मौजज़ात हैं ये मुतलक में नहीं है? कौन से? बहुत सारे मौजज़ात हैं। हाँ, तो हम अगर ऐसा कौन सा एक आध नाम बताइए तो मैं बताऊंगा। जैसे हम मिसाल ये ले लेते हैं, जैसे जन्नत है, ये किसने बताई है? ठीक है, किसने बताई? जन्नत किसने बतलाई? हाँ, जन्नत है, अल्लाह की वहदानियत है, किसने बताया ये? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताई अल्लाह के नबी को। अच्छा, यानी हाँ। इंसान को किसने बताई? इंसान को किसने बतलाई? तुमको किसने बतलाई? तुम्हारे उस्तादों ने बतलाई? इस रुए जमीन पर कायनात मुझे मेरे उस्तादों ने बतलाई। देखो 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 कितनी तरफ, यानी नबी की शान इनको हजम नहीं हो रही है, यानी अभी तक ये नहीं कह पा रहे कि नबी ने बताया है, अभी तक ये नहीं कह पा रहे, अभी तक ये नहीं कह पा रहे। अरे यानी नबी ना आते, तुमने मुतलक कहा है ना, ये बताओ तुमने, यानी नबी ना होते तो कुरान, नबी ना होते तो कुरान नाज़िल होता। तुम्हें किसने बतलाई ये बताओ। अरे अरे, तुमने यही तो कहा है कि तुमको किसने बतलाई? तो मुझे मेरे उस्तादों ने बतलाया, मेरे घर वालों ने बतलाया। अच्छा, तो उस्तादों ने ऐसी हवा में तीर चला दिया, नबी की हदीस पढ़ के बताई? तो अल्लाह के नबी ने क्या नाम है खुद ही तीर चला लिया या जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बतलाया उनको? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तक तुम जा रहे हो हैं? कहाँ शान तक जा रहे हैं? क्या यानी तुम अल्लाह के नबी की शान हजम नहीं होती है? तुम्हें शान बिल्कुल तुमसे आला दर्जे की हम बयान करते हैं। तुम क्या शान बयान करोगे? तुम अल्लाह के नबी की शान हजम नहीं हो रही है तुम्हें? ये कौन कह रहा हजम नहीं हो रही भाई? अल्लाह के नबी को जिन वस्फों के साथ अल्लाह ने नहीं नवाजा है, ये हदीस कुदसी है कि ए महबूब, अगर आपको पैदा करना मेरा मकसद ना होता तो ना मैं जमीन पैदा करता ना आसमां। ये अल्लाह तबारक तआला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अल्लाह तबारक तआला ने जमीन और आसमान बनाए। इससे इल्म गैब साबित हो जाएगा? नहीं, इससे इल्म गैब साबित नहीं हो रहा, मगर आप फिर जो बात कही थी कि ये जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताई, ये बताई उन्होंने, अल्लाह के नबी ने फरमाया एक जगह पीने के लिए आएंगे, हौज़ कौसर पर आएंगे और उनसे कहा जाएगा सुहुकन सुहुकन दूर हो जाओ। इसलिए अल्लाह के नबी से कहा जाएगा कि अरे भाई आप इनको क्यों भगाया जा रहा है? तो लोग कहेंगे, और शायद के मुझे मजमून के बारे में हो सकता है कि शायद फरिश्ते कहें या कोई भी बतलाएगा कि तुमको पता नहीं इन्होंने आपके जाने के बाद में क्या क्या नई नई बातें ईजाद कर दी थी। तो अल्लाह के नबी को तो उस आलम में भी पता नहीं चल पा रहा है कि इन लोगों ने मेरे बाद क्या किया था। अच्छा, तो इल्म गैब कैसे साबित किया जा सकता है? पहली बात तो ये है कि टॉपिक चेंज हो रहा है, मगर फिर इसका जवाब मैं दे दूं। जब ये बयान फरमा रहा है नबी कहाँ पर है? अल्लाह के नबी को तो भाई वही, अच्छा इधर के लेके जा रहे हो, नबी कहाँ पर? मैं इधर खुद ही फरमा रहे हैं। देखो मौजू चेंज कर रहे हैं आप, वैसे मौजू चेंज कर रहे हैं, मौजू चेंज नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल चेंज कर दिया आपने मौजू। आप इसी पे बात करें, ठीक है? चलो इल्म गैब पर वगैरह लेकर आ रहा है, आपने मौजू चेंज किया है, इसका मौजू चेंज नहीं किया दोस्त, मैंने शिकस्त तो कब की हो चुकी है, ये तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मेरी इंसानियत है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना। आपने मौजू कई बार चेंज कर दिया, आपकी तो तुमने भी तो चेंज किया है। मैंने अभी तक पूरी, आप रिकॉर्डिंग सुनने, अगर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो मैंने मौजू चेंज किया हो तो तुम भी सुन लो, पता चल जाएगा। चलो बताओ आगे, पता चल जाएगा आपको। तो यहाँ पे उलूम की बात हो रही है, उलूम, ठीक है? हाँ, तो उलूम में क्या हो गया है? उलूम खाने के उलूम है, इसी तरीके से और बहुत से उलूम हैं। तुम्हारे समझ में नहीं आता है क्या? तुम अक्ल सलीम अल्लाह तबारक तआला ने तुम्हें दी है या नहीं है? हमें यानी अल्हम्दुलिल्लाह, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो गुस्ताख है उसको तुम गुस्ताख नहीं कह पा रहे, जो काफिर उसको काफिर नहीं कह पा रहे। तुम्हारी मोहब्बत इस कदर बढ़ गई, एक मरतबा तुमको वाक़या मालूम होगा, फिर तुम कह दोगे कि हिराब कर रहे हो मौजू से। एक साहबी ने कलमा पढ़ लिया था साहबी रसूल को देख के, और उसके बावजूद भी उन्होंने उनके साथ वो कर दिया था। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क्या तूने इसका दिल फाड़ के देख लिया था, दिल चीर के देख लिया था? तो तुम यार इसी तरह की बात कर रहे हो। अरे यार तुम बार बार उनकी बातों से ये साबित कब हो रहा है? इससे ये बताओ, इससे ये साबित कहाँ हो रहा है कि मुतलक है, क्या है मुतलक है, मुअय्यन है, क्या है? इससे साबित हो रहा? इससे ये है कि अल मुतलक यजरी अला इतलाक़ी है नहीं? अच्छा, कि हाँ, मुतलक अपने इतलाक पर जारी रहता है, लिहाजा मुतलक यानी कि मुतलक क्या है? क्या है मुतलक? मुतलक क्या है? क्या है मुतलक? मुतलक का मतलब ये होता है कि मतलब कौन सा इल्म है? मतलब कौन सा इल्म है मुतलक? मुतलक का मतलब, अरे तो यार पहले मुतलक तो समझ, तभी तो समझोगे। मैं मुतलक समझ गया, यानी नबी का कौन सा जो बिशर्ते शय ला बिशर्ते शय बिशर्ते ला शय के साथ मुक़य्यद न हो उसको मुतलक कहते हैं। क्या? तो बिशर्ते शय ला बिशर्ते शय बिशर्ते ला शय के साथ मुक़य्यद न हो उसको मुतलक कहते हैं। बस उसी को मुतलक कहा जाएगा, उसको मुतलक कहते हैं, उसी को मुतलक कहा जाएगा। वरना तो मुक़य्यद हो जाएगा और क्या।
और अच्छा बाकी सब मुअय्यन है। हैं? हाँ वरना तो मुकय्यद हो जाएगा ना। तो मैं इसलिए तो दो पहलू बतला रहा हूँ, दो पहलू बतला तो रहा हूँ। यानी एक मुतलक इल्म है और एक मुकय्यद है। जो तस्बीह दी जा रही है वो मुतलक में दी जा रही है, मुकय्यद में नहीं दी जा रही है। अच्छा तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आती थी, ये मुतलक नहीं है? कौन सी वही आती थी? अरे कौन सी वही आती थी? हाँ अरे वही तो आती थी, किस तरह की आती थी? मतलू आती थी, गैर मतलू आती थी, वो पूछ रहा हूँ। तुम तो यार कुछ समझ ही नहीं पाते हो शायद। आप नहीं समझ पाते हैं, मैं सिर्फ वही की बात कर रहा हूँ, कोई भी वही उठा ले। हाँ तो कौन सी, मतलू या गैर मतलू? मैं क्या कह रहा हूँ जी, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो खबर दी जाती थी या वही नाजिल होती थी, खबर दी जाती थी, याद रखियो, खबर दी जाती थी। इस जुमले को याद रखना। वो जुमले में मैं बात नहीं कर रहा, वो तो अल्लाह तबारक व तआला ने, आप उधर लेके जाओगे, मैं उस पर बात नहीं कर रहा, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, अभी ये बात मैं कर रहा हूँ आपके बकौल आपके बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बकौल मैं आपके बात कर रहा हूँ। तो जो अल्लाह तबारक व तआला के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो और भी इल्म थे, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती थी, कुरान मजीद उन पर नाजिल हुआ, तो ये मुतलक में नहीं है? हाँ मुतलक है। तो फिर मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, ये मुतलक है। और यहाँ पर मुतलक का सेगा जो इस्तेमाल किया गया उनमें गैबिया, तो क्या कुत्तों पर भी कुरान नाजिल होता है, जानवरों पर कुरान नाजिल होता है? अरे तो बात से तुमने ये वाले उलूम कैसे मुराद ले लिए? अरे ये तो तुमने वाले उलूम कैसे मुराद ले लिए? वो कैसे मुराद ले लिए? यानी नबी का सोना कुत्तों की तरह है, जानवरों की तरह है? वो उलूम तो इसलिए हमने मुराद लिए कि उन्हीं में तशबीह हो सकती है। तुम कैसे मुराद ले सकते हो यार? क्यों ना लेंगे? क्या क्यों ना लूंगा? यहाँ तो भाई दाल है। यानी नबी का सोना कुत्तों के सोने की तरह है, माज़अल्लाह। नबी का बाज उलूम की बात चली और वो बाज की बात चली जिसमें तशबीह हो। अरे तशबीह तभी तो तशबीह किसी से भी दी जा सकती है, तो उनमें है ही नहीं। तशबीह किसी से भी दी जा सकती है, तशबीह किसी से दी जा सकती है, वस्फ के लिहाज से दी जाएगी। क्या जा रहा है उसमें? अरे वस्फ, अच्छा यानी वस्फ के लिहाज से अगर नबी को आज कोई बंदा उठ के खड़ा हो रहा है, नबी को वस्फ के लिहाज से किसी से तशबीह देता, मान लोगे आप? कैसे मतलब? कैसे मतलब? हाँ अरे तुम्हारे ये समझ में नहीं आता बिल्कुल भी। बात यहाँ पर सिर्फ तशबीह की बात चल रही है कि जो मैं तो कह रहा हूँ, क्या मिसाल के लिए मुमस्सल लहू का होना जरूरी है? मिसाल के लिए मुमस्सल लहू के मुताबिक होना बिल्कुल हू बहू जरूरी है। अच्छा तो यानी हू बहू ना हो तो मिसाल दे सकते हैं? यानी अगर मिसाल दे सकते हैं तो माज़अल्लाह अगर कोई ये कहे कि अल्लाह की शान ऐसी है, अल्लाह जो है अल्लाह की शान ये है, और गलत तरीके से कुछ तशबीह दे, तो क्या होगा ये? हैं बताइए। अल्लाह को गलत तरीके से तशबीह दे? आज जैसे इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशबीह दी गई है इस इबारत में, ऐसे अल्लाह को कोई तशबीह दे तो? अल्लाह तबारक व तआला तो मुशाबे नहीं है ना, किसी की तशबीह की कैसे जा सकती है? आप मुशाबे है नहीं, मुशाबे है नहीं, यानी तो ये किसी के। आप जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ आप आए ना बात पर, बिल्कुल आए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक कुत्तों के मुतशाबे हैं? अल्लाह के नबी को हमने कब कहा यार? दोस्त मुझे को बात ले जाते हो, बाज की चल रही है बात। हाँ तो अल्लाह के नबी मुतशाबे हैं? अल्लाह के नबी जैसा है कोई? अल्लाह के नबी जैसा कोई भी ना। तो फिर जब कोई है नहीं, तशबीह हमने कब कहा कोई है उन जैसा? तो तशबीह दे कीजिए किस तरीके से दी जा सकती है फिर जब कोई है नहीं तो? अरे वजूद है, वजूद से तशबीह दी जा सकती है कि नहीं? कि जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद है वो किसी और का वजूद है? एक वजूद है एक, ठीक है। यानी जो अल्लाह के नबी को जो जैसा वजूद है वैसा कुत्तों का वजूद है, जानवरों का वजूद है यार, बस पे वजूद। अच्छा ये बताइए, नीचे से शुरुआत करते हैं हम। हैवान है, इसी तरीके जिसमें नामी है, जिसमें मुतलक है, और इसी तरीके से वजूद है। तो वजूद में कौन आता है? सारी चीजें आती हैं कि नहीं आती हैं? जिनका भी वजूद है। मैं ये पूछ रहा हूँ, जिसके लिए वजूद हो उसमें वो आएगी। तो इस वजूद में अल्लाह के नबी शरीक है नहीं? ये बतलाइए। बात सिर्फ यहाँ हो रही है कि अल्लाह के नबी जैसा वजूद, अल्लाह के नबी अरे नहीं, अल्लाह के नबी जैसा वजूद जो है कुत्तों के पागलों के पास है? वजूद में अल्लाह के नबी शरीक है नहीं? ये बताइए। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो। जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद है वैसा जानवरों का वजूद है? तुम इतना बताइए, बस पे वजूद में शरीक हैं सब नहीं? मैं क्या कह रहा हूँ, आप पहले मेरी बात का जवाब दें। हाँ मेरी बात का जवाब दें।
जैसा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद है वैसा एक जानवरों का वजूद हो सकता है? जैसा वजूद है अल्लाह के नबी का ऐसा तो नहीं है, अलबत्ता मुतलक वजूद में सब शरीक हैं जो भी मौजूद हैं। अच्छा, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद में सब शरीक हैं ये भी? मुतलक वजूद, आप मुतलक वजूद नहीं सुनते हो? अच्छा, मुतलक वजूद में शरीक हैं। हाँ, और अगर नहीं है तो फिर बतलाइए वजूद की जो मिसाल बनाते का देते हैं, क्या उसमें अल्लाह के नबी आएंगे या नहीं? एक मिनट, मुतलक वजूद में सब शरीक हैं? बिल्कुल शरीक हैं। अच्छा, मुतलक वजूद में शरीक हैं, माज़अल्लाह। हाँ, मुतलक वजूद में। और यानी आप देखें सामाइन, ये कहने की सामाइन क्या यार दोस्त, वैसी खामखाई खुद समझ नहीं रहे हो बिल्कुल बात। आप बात को नहीं समझ रहे हैं, आप बात किसी दूसरे पहलू में ले जा रहे हैं। मैं आपको दूसरे पहलू में ले जा रहा हूँ, आपको इतनी बारीकी के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम समझ भी नहीं पा रहे हो हमारी गुफ्तगू क्या है। भूसा भरा हुआ है। हाँ, वजूद सबसे आला दर्जे की जिन्स है, इसमें बताओ वजूद में अल्लाह के नबी शरीक है नहीं? अरे आपको कुछ समझ में नहीं आता है? मैं क्या समझ में आ रहा है हमारे? क्या समझ में आ रहा है आपको? आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी का जैसा वजूद है, क्या सब शरीक है? कुत्ता भी शरीक है, पागल भी शरीक है, आपने भी अरे यार दोस्त वजूद में सब शरीक है ना, जैसे हैवानियत में सब शरीक हैं, ऐसे वजूद में भी तो सब शरीक है नहीं? ये मानते हैं कि अल्लाह के नबी जैसा है ही नहीं कोई। अरे अल्लाह के नबी जैसे की बात, उसी को मैं बार बार कह रहा हूँ, एक मुतलक होता है, एक मुक़य्यद होता है, समझ कब रहे हो? हम मुतलक समझ रहे हो? यानी वजूद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद में कुत्तों के वजूद में कोई फर्क नहीं है। जानवरों को इतनी लंबी कलाम कर दिया तुमने। मैं वही बार बार कह रहा हूँ, एक मुतलक वजूद होता है, एक मुक़य्यद वजूद होता है। तो महज वजूद में तो सब शरीक हैं, अलबत्ता अल्लाह के नबी का वजूद जो है जो सबसे आला दर्जे का रहेगा। इसको हमने कब कहा है? अच्छा। हाँ, मुतलक दर्जे का शरीक हैं, अलबत्ता अल्लाह के नबी का जो वजूद है वो अल्लाह के बाद सबसे आला दर्जे का है। अच्छा, कभी आप कुछ कहते हैं, कभी आप कुछ कहते हैं। जब हम यही कहते हैं, जब आला दर्जे का वजूद है तो फिर जानवरों से कैसे तशबीह दी जा सकती है? तुम यार वही वाली बात करते रहोगे, वही हम तुमको समझा रहे हैं। एक मुक़य्यद होता है, एक मुतलक होता है। अभी तुम इसको नहीं जान पा रहे हो तो हम क्या करें? एक मिसाल के तौर पे मुतलक में गिना दें क्या? एक मैं बता रहा हूँ, लड़का ये मुतलक है, खूबसूरत लड़का ये मुक़य्यद है, ठीक है? लड़का तो अब ये कहना कि जैसे ये लड़का है हमारा नहीं, एक लड़का है, मुझे अल्लाह के नबी की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, जाओ सुनो। हाँ, मुझे मिसाल ना दो, मैंने ये नहीं पूछा। मैंने सिर्फ ये पूछा है कि अल्लाह के नबी के जो वजूद में मुतलक क्या क्या है? वजूद में मुतलक क्या है? एक नफ्स वजूद होता है, यानी कि जब वजूद को किसी अवारिज के साथ मुत्तसिफ न माना जाए, मुजर्रदा छोड़ दिया जाए, मुतलका छोड़ दिया जाए उसको। अच्छा, हाँ, कैसे? शर्त लाशय के साथ अगर मलहूज नजर रखा जाए, मद्दे नजर रखा जाए, तो उस शक्ल में उस वजूद की हम बात कर रहे हैं। हम मुक़य्यद वजूद की बात नहीं कर रहे हैं। मुक़य्यद का मतलब ये है कि अल्लाह के नबी का वजूद है वो तो बहुत आला दर्जे का है, तो आला दर्जे का होना ये मुक़य्यद है। क्या पूछा आप? मैं क्या पूछ रहा हूँ? कहाँ जा रहा था? तुम फिर उधर को कर रहे हैं। नहीं, मिसाल दे रहा था, तुमने मना कर दिया। नहीं, इधर नहीं। मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे? और जिंदगी बात कर रहे हैं, मेरा फोन जो ऑफ होने वाला, फिर आप कहोगे भाग गया। देखो, ठीक है? नहीं, मैं नहीं कहूँगा भाग गया। नहीं, आप कहोगे, मैं जानता हूँ, ठीक है? हाँ, चलो बताओ। कोई बात ना, उस पे लगा लो, उस पे चार्जर पे लगा लो, कोई बात ना। मेरे भाई लाइट नहीं आ रही है, इन्वर्टर डाउन पड़ा, आवाज आ रही होगी, बोल रहा इन्वर्टर आ रही है, क्या पता किसकी आ रही है।